Hello everyone, myself Prithak Taylor and I am going to teach you the chemistry section of class 10 science. Okay, so in our previous section or in a previous video, we discussed about what do you mean by the term combination reaction and we discussed various types of their examples. Okay, so now we discuss our another type of reaction, chemical reaction, which is known as the decomposition reaction. Okay, so I am already discussed about it. What do you mean by decomposition reaction? I have again discussed a little bit that decomposition means the term decompose. Okay, decompose means breakdown. Okay, so here what do you mean by the term breakdown? That the higher substance. Okay, the higher substance means the combination of various types of element in form of higher complexes or both compounds. Okay, higher substance is breakdown into smaller substance. Okay, it will be more than one or okay, more than one. Okay, so what is that the term decomposition reaction? That type of reaction which means the term decompose means breakdown. So what we have to break down the higher substance break into small substance. Okay, okay, now we discuss the initiatic activity. Okay, there is a 2 gram of ferrous sulfate which is hydrated. Hydrated means there is a presence of water. Okay, what we take is the 2 gram of ferrous sulfate crystals. Okay, which is present in our green color. Okay, now these particular substance are heat in boiling tube with help of burner. After the burning, that particular crystals are turning into the color brown. Okay, so what we found it in this activity that a particular type of odor. Okay, odor means smell. There is a you see that this particular type of gas are evolved. Which type of gas is this evolved? I mentioned in the our chemical equations. Okay, okay. So particular what we notice that in our neck dye that the green color is turned into brown and a particular type of gas is evolved. Okay, reaction. Okay, what we hear Fe2SO4 which is heated. This sign is heated. Okay, so what happened that there is another compound or substance are formed which is product Fe2O3 plus SO3 and SO2. Okay, so what we see that there is a particular one type of reactant are present here which is heated and at that particular condition it is break down into different types of products. Okay, what we say a single reactant is converted into three products. Okay, so what we see that there is a breakdown of reactant into smaller substances. Okay, these all are formed by help of this. Okay, so we write our definition that the definition of decomposition reaction, it is a reaction in which single reactant break down into two or more product. Okay, so this is the equation of this is the definition of decomposition reaction. Okay, now write this example also that Fe2SO4 is heated and what we get Fe2O3 plus SO3 and SO2. Okay, so this if you want to write the state, please mention it. It is solid. This is also solid. This is gas and this is also gas. Okay, so there is a evolution of two gases and one solid which is known as ferric oxide. Okay, this is ferric oxide and this is ferrous
sulfate. Okay. So I think you understand the term what do you mean by decomposition. That decomposition reaction is that which break down into their smaller products. Okay, this is the example. Okay, now we can discuss our more types of examples here. Discuss more example of decomposition reaction. Like we took a limestone which is a calcium carbonate. Okay, this is the chemical formula of calcium carbonate, which is heated and again broken into a breakdown into quicklime and CO2. This is calcium oxide. Okay, so write it here. This is calcium carbonate, and this is calcium oxide, and this is also we know that this is carbon dioxide. So if we discuss about state, this is solid, this is also solid, and this is gas. Okay, so what we get it that a single reactant is broken down into two different types of products. Okay, now the most important question, or now we discuss the most important reaction in this decomposition. This is most important. 8.4 volts. Okay, this is most important example or reaction in point of view of boards. Okay, so first we balance the chemical equation. Just say that Pb1 and this is N whole twice. Okay, this 2 is whole twice, so N2 and O6. So N2 here is N1 and P. Okay, now O3 to 6 and here is 2 to 4 and 5. Okay, so now we balance it. We put 2 here and we put 2 here, 2 and we put 4 here. Okay, now you see that the complete this reaction is completely balanced. Okay, तो क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इस क्या हो रहा है इसमें. इसका नाम है लीड नाइट्रेट. ओके, व्हाट्स दिस फॉर्मूला नेम? लीड नाइट्रेट. Pb means lead and NO3 means nitrate. Okay, is heated. Okay, lead nitrate is heated. Okay, so what we discuss in decomposition is breakdown of molecule. Okay, so lead nitrate is breaking down into lead oxide. Okay, this is nitrogen dioxide and this is oxygen. Okay, so lead nitrate is broken down into lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. Now we discuss more example. We discuss normal activity that हम क्या करते हैं, चांदी. ओके, चांदी होती है उसको ऐसे एयर में रख देते हैं, क्या हो जाती है? ऑक्सीडाइज हो जाती है. ओके, तो वो डिकम्पोजिशन नहीं होगा. लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक हमारे पास कंपाउंड होता है. ओके, क्या कंपाउंड होता है? AgCl. ओके, AgCl को क्या किया हमने? सनलाइट में रखा. ओके, AgCl को हमने क्या किया? सनलाइट में रखा है. तो क्या होगा? ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे अपने मॉलिक्यूल्स में. ये क्या क्या प्रेजेंट है? Ag मीन्स सिल्वर प्लस Cl. नाउ वी नो दैट 2 AgCl 2 and 2. ओके, so this is chlorine. Okay, chlorine compound. Here mention Cl2. Okay, this is chlorine gas and this is our silver. Okay, again we discussed it. Same type of material, but there is a halide. This is halides. Okay, halogen group. R changes means AgBr. Again same sunlight. This is 2Ag plus Br2. Okay, तो इसका रखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि वो एक आयन स्मॉल आयन को लेस रिएक्टिव आयन को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है. ओके, देर क्या होता है? रिप्लेसमेंट होता है. इसमें क्या होता है? पहले डेफिनेशन में डिस्कस करते हैं हम. इट इज अ रिएक्शन इन विच आर मोर रिएक्टिव. मीन्स I discuss what do you mean more reactive and less reactive. Okay, element replaces less reactive element from its compound is known as displacement reaction. This is a simple definition. पहले मैं सिंपल समझाता हूँ आपको. मेरे से पावरफुल जो एक पर्सन आता है. ओके, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझसे जोर से पुश करेगा और मुझे यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, खुद खड़ा हो जाएगा यहाँ से. ठीक है, इजीली उसके लिए क्योंकि मेरे से ज़्यादा पावरफुल है. मतलब मोर, अगर टर्म्स ऑफ रिएक्शन की बात करूँ क्या बोलूँगा? पावर की जगह रिएक्टिव बोलूँगा. ओके, मैं पावर को किससे कंपेयर करूँगा? रिएक्टिव से.
क्या होगा कि मेरे से ज़्यादा पावर वाला आएगा और मुझे यहाँ से क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। मैं यहाँ से चला जाऊँगा और आफ्टर डेट वो सेकंड पर्सन यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो इट इज़ अ रिएक्शन, ठीक है, ऐसे रिएक्शन है इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर पावरफुल एलिमेंट, ओके, जो क्या कर रहा है उसको इजीली क्या कर रहा है वहाँ से रिप्लेस कर पाएगा। मोर पावरफुल एलिमेंट और मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव, जो कम पावर वाला उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ओके, कहाँ से करेगा, वो जिस कंपाउंड से जुड़ा होगा, ठीक है। मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ पेन के साथ, ठीक है, किसी और पावरफुल जो पर्सन है उसको ये पेन पसंद आ गया, वो मुझे थप्पड़ मार के निकाल देगा और पेन तेरा छीन लेगा मेरे से, ठीक है। तो ये मेरे से जुड़ा हुआ है फिलहाल, ठीक है। तो क्या होगा कि इट इज अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव, ठीक है। पावरफुल इंसान आएगा और मुझे क्या करेगा, इस पेन के लिए रिप्लेस कर देगा और खुद इस कंपाउंड के साथ क्या कर लेगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सी डिस्कस रिएक्शन क्या है, डेफिनेशन है। हम एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्यूशन है हमारे पास कॉपर सल्फेट का, ठीक है। कॉपर सल्फेट लिखते हैं अपन CuSO4, ठीक है। ये कौन सा सॉल्यूशन है, अपने ब्लू कलर का जो शेडेड पार्ट है वो CuSO4 है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसमें हमने क्या कर दिया, एक थ्रेड की हेल्प से दो आयन की नेल्स, ठीक है, जो अपन कील वगैरह जो घर पे यूज करते हैं, उसको क्या कर दिया, डीप कर दिया, अंदर डुबो दिया। आयन नेल्स मतलब आयन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, ओके। तो आयन नेल्स को मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या कर दिया, उसमें डीप कर दिया, ओके। तो आफ्टर फ्यू मिनट्स, ओके, आफ्टर फ्यू मिनट्स हमें क्या मिलता है, कुछ टाइप्स के उसमें चेंजेस मिलते हैं। एक उसके कलर में चेंज मिलता है, ठीक है, कुछ स्टेट में भी चेंज मिलता है, इस सॉल्यूशन कलर में भी वेरिएशन मिलेगा और नेल्स के कलर में भी वेरिएशन मिलेगा। तो हम डिस्कस करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन क्या होगी, आयन नेल्स है Fe, ओके, सॉलिड है, ओके। आयन नेल्स को किस में डिप किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में किया है, तो सो CuSO4। जहां वर्ड सॉल्यूशन आ जाए वहां पे आप लिक्विड नहीं यूज करेंगे स्टेट, उसकी जगह पे आप लिखेंगे एक्वस, ओके। एक्वस का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर टाइप का सॉल्यूशन है, ओके। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ, रिएक्शन ऑन अपनी अधूरी रह जाएगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको नेल्स, ओके, आयन नेल्स Fe। तो अब क्या कर रहे हैं, Fe को हमने CuSO4 क्या करें, डिप किया है। थोड़े टाइम बाद हमें क्या मतलब मिलता है, FeSO4 सॉल्यूशन मिल जाता है थोड़ा टाइम, थोड़ा सा, ठीक है, फ्यू मिनट्स बाद। और यहाँ से Cu क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ओके। ये भी क्या बना, सॉल्यूशन बना, मींस एक्वस एंड दिस इज सॉलिड। तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या बताया अभी आपको कि एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। यहाँ पे Fe जो है वो Cu के कंपेयर में क्या है, Fe is greater than Cu. This means it is more reactive than Cu. जब ये ज़्यादा पावरफुल है, इसको क्या करेगा, इस कंपाउंड से अलग कर देगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो Fe क्या करेगा, Cu को यहाँ से बाहर निकाल देगा और खुद SO4 के साथ बैठ जाएगा। तो Cu क्या हो गया, यहाँ से फ्री हो गया। मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि पावरफुल आयन क्या करता है, दूसरे कंपाउंड में जो आयन अटैच होता है उसको क्या करता है, फ्री कर देता है, फ्री आयन मिलता है। तो Cu यहाँ से क्या होगा, फ्री हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, FeSO4। तो यहाँ हमें दिख रहा है प्रोडक्ट साइड में क्या मिला, FeSO4, फेरस सल्फेट मिल गया और साथ में Cu क्या हो गया, फ्री हो गया यहाँ से, ओके। तो हमने जो पहले डिस्कस किया था वीडियोस में, उससे क्या हो रहा है, कोरिलेट कर पा रहे हैं हम उसको इजीली, ठीक है। हम एक कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम करते हैं PB, ओके, लीड को अपन CuCl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, ओके। पीबी को हमने क्या किया, पीबी मीन्स लीड को हमने CuCl2 के साथ क्या करवा दिया, रिएक्ट करवा दिया। पीबी इज मोर रिएक्टिव देन, ये रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, कम होती है, हम आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ जनरल अभी टर्म्स की बात कर रहे हैं, ओके। पीबी इज ग्रेटर रिएक्टिव देन Cu, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये उसको डिस्प्लेस करके इसको फ्री कर देगा, इजी है ये, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, PbCl2 क्या बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा, इसको कंपाउंड बन जाएगा, ओके। और यहाँ से फ्री कौन होगा, Cu फ्री होगा, ओके। तो Cu को हमने फ्री कर दिया यहाँ से, ठीक है। इसकी स्टेट लिखना जरूरी है, ये सॉलिड होता है, इसको अपन सॉल्यूशन में रहते हैं, एक्चुअली होता है तो सॉलिड में नहीं है, लेकिन सॉल्ट इसको सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये भी हमको क्या मिलता है, यहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है और ये किसमें सॉलिड पार्ट में मिल गया, ठीक है। तो इजीली आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, हायर रिएक्टिव वाला लोअर रिएक्टिव वाले क्या करता है, नॉर्मली डिस्प्लेस करता है और डिस्प्लेस करता है वहाँ से, ओके। ये एक्टिविटी आपको समझ में आ रही होगी, जिसमें आयन फिल्स को कॉपर सल्फेट में मैंने क्या किया, डीप किया। हम इसके रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। हम इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आता है, ठीक है। ये रिएक्शन आपने लिख दी होंगी दोनों,
मैं इस रिएक्शन को मिटा रहा हूँ अभी एक बार के लिए। हम पहले इसके रिजल्ट्स के क्या करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या रिजल्ट हमको मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो होता हुआ क्या, आयरन को मैंने इसमें डिप किया, आयरन का कलर क्या था, हल्का सा शाइनी होता है, ओके, सिल्वरी टाइप का होता है कलर, ठीक है। तो वो कलर किस में चेंज हो जाएगा आपका, ब्राउनिश में। आपने देखा होगा जंग लग जाती है चीज़ों को, ठीक है। तो वो क्यों लगती है, कि वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता तो मैं ऑक्साइड बना, लेकिन यहाँ पे किसी सल्फेट के साथ रिएक्शन है, सल्फाइड बनेगा, ओके। तो क्या हुआ यहाँ पे, आयरन का कलर क्या होगा, सिल्वर कलर से किसमें चेंज हो गया, ब्राउन में, ओके। जंग का कलर आप सब जानते हो कि किसमें होता है, ब्राउन कलर का होता है, ओके। रस्ट आपका, ओके। सो नाउ एक सॉल्यूशन के कलर में भी क्या होता है, चेंज आता है आपका। क्या होता है, सॉल्यूशन का कलर इनिशियली आपका जो होता है वो होता है ब्लूइश, ओके। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लूइश होता है, ठीक है। तो ये ब्लू कलर से चेंज होके ग्रीन कलर में बदल जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन अब किसका बन गया है, फेरस सल्फेट का। और फेरस जो अपना आयरन जो होता है Fe, ओके, वो कौन सा कलर डिस्प्ले करता है, ग्रीन कलर, इसलिए सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रीन हो जाएगा। तो लास्ट पार्ट ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। इसको दूसरा नाम से भी जानते हैं हम, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। क्या होता है, हमने अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात की, जो हायर रिएक्टिव क्या होता है, लेस रिएक्टिव के साथ रिप्लेस हो जाता है। यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट होगा, लेकिन कैसे होगा, डबल होगा रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होगा, हमारे पास दो टाइप के क्या होंगे, कंपाउंड्स होंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि पर्टिकुलर एक एलिमेंट होगा फ्री और दूसरे एलिमेंट को लेस रिएक्टिव वाले को फ्री कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या होंगे, दोनों अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। वो आपस में क्या करेंगे, दोनों कंपाउंड के साथ आएंगे, ठीक है। जो हायर रिएक्टिव वाला होगा करेगा, वो लेस वाले की पोजीशन पे आ जाएगा, उसके साथ जो कंपाउंड है वो बना लेगा, और जो लेस वाला है वो हायर वाले की जगह पे आ जाएगा। मतलब क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मैं समझाता हूँ आपको इजीली। पहले उसकी डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। इट इज अ रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अब क्या होगा, दो अलग अलग टाइप का कंपाउंड्स होंगे, रिएक्ट विद ईच अदर, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, एंड द पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। एक पर्टिकुलर कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से, ठीक है। तो उसके आयंस जो होंगे आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो एक्सचेंज प्लेसेस एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, ओके। नाउ इट डिस्कस एग्जांपल, ओके। एग्जांपल में क्या है, हमारे पास एक फर्स्ट कंपाउंड है सोडियम सल्फेट, ओके। इसका नाम क्या है हमारे पास, सोडियम सल्फेट, ओके। इसका नाम है हमारे पास बेरियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम सल्फेट है, Na किसका साइन है, सोडियम का है, SO4 किसका, सल्फेट का, ठीक है। सोडियम सल्फेट है, एक हमारे पास कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड कौन सा है, BaCl2, जिसको बेरियम क्लोराइड कहते हैं हम। अब क्या होंगे, आयंस आपस में एक्सचेंज होंगे, तो किसका नाम क्या हो गया, बेरियम सल्फेट, और इसका नाम हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड। सो हमने क्या नोटिस किया यहाँ पे, कि जो Na आयन था, अभी एक्चुअली इसके आयंस की बात की मैंने, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की बात की है। पहले हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, Na2SO4 को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे। तो यहाँ पे जो होगा चार्ज Na प्लस का होगा, और यहाँ पे SO4 2 माइनस का, ओके। इस पर्टिकुलर चार्जेस कैसे आते हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी समझने के हिसाब से देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया और इसमें नेगेटिव आयन हो गए, दोनों एक पर्टिकुलर कंपाउंड में दो आयंस मिल गए हमको। यहाँ पे बात करेंगे Ba प्लस, हाँ Ba प्लस एंड 2 एंड Cl माइनस, ओके। यहाँ पे क्या है, Ba प्लस 2 है और यहाँ पे Cl माइनस है, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी मैं इसका आयंस लिख देता हूँ, Ba प्लस 2 एंड SO4 2 माइनस Na प्लस एंड Cl माइनस। तो यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया, Na यहाँ पे सोडियम जो है बहुत हाईली रिएक्टिव मटेरियल माना जाता है, ठीक है, अपने पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो हाईली रिएक्टिव है, तो क्या हो गया ये कि हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो ये इसकी जगह पे आके बैठ जाएगा यहाँ पे, ये की जगह पे, ओके। ये तो अपना फर्स्ट टाइप का रिप्लेसमेंट, फर्स्ट रिप्लेसमेंट हुआ, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब ये जो Ba फ्री हुआ था, अब ये फ्री होकर अकेला नहीं रहेगा, क्या करेगा, ये जो Ba फ्री हुआ वो SO4 के साथ आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो Na किसके साथ चला गया, क्लोराइड के साथ चला गया, और Ba किसके साथ आ गया, सल्फेट के साथ आ गया। इसलिए हमारे पास क्या मिला, बेरियम सल्फेट मिला। Ba आयन किसके साथ आ गया, सल्फेट आयन के साथ आ गया, और जो हमारा सोडियम था वो क्लोराइड के साथ, जिससे सोडियम क्लोराइड अपना एक अलग सब्सटेंस या कंपाउंड मिल गया।
ठीक है, वापस से डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग बोलते हैं, इट इज अ रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड आर रिएक्ट विद ईच अदर, ओके, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एंड द पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस, ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर एक्सचेंज इट्स प्लेसेस, पॉजिटिव वाला इसकी पॉजिटिव की जगह पे आ गया, नेगेटिव वाला की बात करें, नेगेटिव वाले के आपस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ही हो रहा है एक तरीके से बात करें, ठीक, और प्लस एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, और हमारे पास क्या हो गया, नई तरीके सब्सटेंस अवेलेबल हो गया, ठीक है। सो होपली कि आपको ये पूरे चार टॉपिक रिएक्शन के समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या कवर करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। सो नाउ वी डिस्कस द टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ओके। सो व्हाट डू यू मीन बाय टर्म ऑक्सीडेशन, पहले हम समझ लेंगे ऑक्सीडेशन क्या होगा, ठीक है, साथ ही में हमारे का कंप्लीट हो जाएगा, रिडक्शन भी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। पहले टर्म ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन से साउंड आ रहा है ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन से साउंड आ रहा है, ठीक, तो यहाँ ऑक्सीडेशन उस टाइप की रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ओके, दिस आर टाइप्स ऑफ आल्सो रिएक्शंस, ओके। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वैसी रिएक्शन होगी जहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ओके, इसके टर्म से पता चल रहा है ऑक्सी मीन्स ऑक्सीडेशन, ओके, तो ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीडेशन मतलब कि जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल होगी, जिस कंपाउंड में या किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन क्या हो रही होगी, ऐड हो रही होगी, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं गैनिंग ऑफ ऑक्सीजन, ओके। पहले ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, रिडक्शन की बाद में बात करेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, गैनिंग ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन हम यहाँ करते हैं हाइड्रो ऑक्सी की बात करते हैं। हाइड्रो ऑक्सी मीन्स इनमें होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या होगा, इसका उल्टा होगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे लूज होगा, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, ओके। तो ऑक्सीडेशन में क्या दो चीजें फैक्टर सामने है हमारे, कि एक तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में उस रिएक्शन को बोलूंगा जहाँ पे क्या हो रही होगी, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी या फिर हाइड्रोजन लूज हो रहा होगा, या फिर दोनों भी हो सकती है कंडीशन, ठीक है, जस्ट कंडीशंस है, ठीक। एक तीसरा फैक्टर और है जिसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, एक बार रिडक्शन समझा देता हूँ। आपके 10th में सिर्फ दो ही पॉइंट है, एक गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन है, एक लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन है, ये थर्ड पॉइंट और साथ में हम कर लेते हैं, ये आपके आगे फर्दर स्टडीज में भी काम आएगा, ठीक है। रिडक्शन की बात करते हैं, रिडक्शन जस्ट ऑक्सीडेशन का क्या होता है, उल्टा होता है। रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस होना, ठीक है। अपन से फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, ऑक्सीजन को, रिड्यूस का मतलब निकलना, तो ऑक्सीजन यहाँ पे गेन हो रही थी, यहाँ पे क्या होती है, रिड्यूस होगी मतलब निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के टाइम में बात कर ली, और हाइड्रोजन यहाँ पे लूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, गैनिंग ऑफ हाइड्रोजन, ओके। तो पर्टिकुलर हमारे पास दो कंडीशन इसकी होगी, दो कंडीशन इसकी होगी। अब हम चेक करेंगे कि किसमें अगर किसी रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा तो भी उसको ऑक्सीडेशन बोलूँगा, हाइड्रोजन लूज हो रहा होगा तो भी मैं उसको ऑक्सीडेशन बोलूँगा, अगर ऑक्सीजन लूज हो रहा होगा तो उसको रिडक्शन बोलूँगा, अगर हाइड्रोजन गेन हो रहा होगा तो उसको रिडक्शन बोलूँगा, ठीक। एक थर्ड पॉइंट और है, हम इसको भी डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात किसकी हुई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। अब मैं किसके टर्म्स में बात करूँगा, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर मैं किसी रिएक्शन में लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं वहाँ से निकल रहे हैं किसी से, ठीक है, एलिमेंट से, उसको क्या बोलूँगा मैं, ऑक्सीडेशन बोलूँगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है माइनस का, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर्टिकुलर कंपाउंड पे या पर्टिकुलर एलिमेंट पे कौन सा चार्ज देके जाएगा, पॉजिटिव चार्ज देगा। हमें देखा कंपाउंड किससे मिला हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव से, अगर नेगेटिव चला गया तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा, ठीक है। तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलूँगा मैं, ऑक्सीडेशन। सेम यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, गैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होगा वो क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है, गेन का मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अब नेगेटिव चार्ज आएगा तो मैं क्या होगा, नेगेटिविटी बढ़ेगी, तो पर्टिकुलर कंपाउंड पे क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज का स्पेयर बन जाएगा, ठीक है, क्लाउड हो जाएगा वहाँ का। तो ये जस्ट बेसिक 3 कंडीशन है, इस पर हमें चेक करना है कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन है और कौन सी रिडक्शन है, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी क्या हो जाता है, चलो पहले इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि अब कभी कभी यूँ होता है कि हमें कहीं कहीं पे गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन भी मिल जाता है और साथ में गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन भी मिल जाता है। अब ये तो या तो उसको ऑक्सीडेशन बोलूँ या मैं रिडक्शन बोलूँ, अगर मैं इस कंडीशन को फॉलो करता हूँ तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, या इस कंडीशन को फॉलो करूँ तो रिडक्शन हो जाता है, और यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम क्रिएट आने लगी, ठीक है। तो एक टर्म और आता है इन दोनों के साथ,
रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये कुछ नया नहीं है, ये इन दोनों से मिलके ही बना हुआ है, ठीक है। देखा जाए तो कैसे, RED यहाँ से लिया मैंने रिडक्शन से, ठीक है, और OX कहाँ से लिया, ऑक्सीडेशन से लिया। इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया तो क्या बन गई मेरी रेडॉक्स रिएक्शन मिल गई। पर रेडॉक्स रिएक्शन क्या कुछ नया तो है नहीं। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रही हो और साथ में क्या हो रहा हो, रिडक्शन रिएक्शन भी हो रही हो, ठीक है, उसको मैं क्या बोलूँगा, इज अ रेडॉक्स रिएक्शन बोलूँगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कभी जनरल ये कंडीशन आप अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा, मैं इसकी डेफिनेशंस लिखवा देता हूँ साथ में। पहले आप डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन उसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, ओके। फर्स्ट ऑक्सीडेशन की मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। इट इज अ रिएक्शन इन विच द एडिशन, ठीक है, एडिशन लिख दीजिए, गैनिंग लिख दीजिए, चले सब चलेगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ओके। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे टर्म इलेक्ट्रॉन का ऐड करना चाहते कर लीजिए, वरना डेफिनेशन ही इसमें में क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी, ओके। एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा टर्म हम डिस्कस करते हैं कौन सा, रिडक्शन में। बस तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन बना रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगी, इट इज अ रिएक्शन इन विच द एडिशन ऑफ, क्या हो जाएगा एडिशन, हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज रिडक्शन रिएक्शन, ओके। तो दोनों के रिएक्ट के बारे डेफिनेशन में लिखवा दी है आपकी, ठीक है। अगर चाहो तो बीच में मैं एग्जांपल भी लिखवा देता हूँ पर्टिकुलर एग्जांपल लिख देना इसमें। ऑक्सीडेशन की बात करें तो क्या होना चाहिए, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए या फिर रिमूवल होना चाहिए। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कुछ रिएक्शंस लिखवाए हैं, उसी में से एक रिएक्शन ले रहा हूँ। कार्बन इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। और क्या बनता है प्रोडक्ट, CO2 गैस, ओके, इज ऑल्सो गैस। तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। एग्जांपल की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, CuO प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ हमको मिल जाएगा Cu प्लस H2O, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, मतलब हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, जिसमें हाइड्रोजन क्या हो, एडिशन हो, क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये मैंने डेफिनेशन दे दी है। अब थर्ड जो पॉइंट है अपना वो है मर्ज का मर्जिंग पार्ट है, क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है रेडॉक्स रिएक्शन, मैंने बता दिया है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी अवेलेबल और रिडक्शन भी। सो इट इज अ reaction in which the oxidation and reduction reaction take place। क्या होगा, इट इज अ रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस, ओके। साथ में क्या हो जाएंगी, ये दोनों के दोनों रिएक्शन में कंडीशन हमको अवेलेबल हो जाएंगी, तब उसको क्या बोलेंगे हम, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक होता है। एक आता है एजेंट्स, ठीक है। एजेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो उस चीज़ को करने में हेल्प करे, ठीक है, एजेंट्स में। एक होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। दो टाइप के एजेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मेरे पास और एक दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है।
तो अब देखना एजेंट का काम क्या करता है, वो चीज़ होने में हेल्प करे, ठीक है। लेकिन याद रखना कि ये वर्ड से मत चले जाना। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ये नहीं कि ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा, रिड्यूसिंग का मतलब नहीं रिडक्शन में हेल्प करेगा, ये उसके ट्रांसफर्स या उसके अपोज में काम करेगा। कैसे? ऑक्सीडाइजिंग का ऑक्सीडेशन वर्ड पकड़ो, ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है? ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन होता है। मतलब ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो टाइप के एजेंट्स हैं हमारे पास जो क्या हेल्प करेंगे, जो लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एडिशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। जो इनमें हेल्प करेगा वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और रिड्यूसिंग क्या हो जाएगा? वाइस वर्सा हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसमें? जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाए, जो क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाए, या फिर क्या कर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाए, ठीक है। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करवाए, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कराएगा उसको क्या बोलूंगा मैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोलूंगा। जबकि लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन करेगा और एडिशन हाइड्रोजन करेगा उसको ऑक्सीडाइजिंग बोलूंगा। दोनों का फिनोमेना, अगर ये फिनोमेना की बात करूं मैं, ये किसका फिनोमेना है? रिडक्शन रिएक्शन का फिनोमेना है, ठीक है। और ये किसका फिनोमेना है हमारा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का फिनोमेना है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन का कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करेगा हमारा हाइड्रोजन गैस से, और हमें एज अ रिजल्ट, एज अ प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम अलग हो जाएगा, कैल्शियम अलग हो जाएगा सॉलिड एंड प्लस वाटर इससे अलग हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि रेडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रही है, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो चेक करते हैं रिडक्शन रेट, पहले ऑक्सीडेशन चेक करते हैं, ठीक। ऑक्सीडेशन का मतलब या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा, फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो सी ऑक्सीजन ऑलरेडी एडेड है तो उससे मतलब ऑक्सीडेशन मतलब ही नहीं होगा। यहाँ पे हम देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अभी सिंगल है, ऑक्सीजन इसके साथ ऐड नहीं है। और यहाँ पे हमने क्या चेक किया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया? कंबाइन हो गया। मतलब एडिशन यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन का हुआ है। मतलब ये टर्म किस में चला जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, ओके। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एक कंडीशन तब नहीं लगती, क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। दूसरा हमें क्या चेक करना है कि रिडक्शन कैसे होगा? रिडक्शन में क्या होना चाहिए? या तो लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है, और या फिर क्या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने देखा कि यार एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो हो नहीं पा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या चेक कर पा रहे हैं कि इस कंपाउंड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। और जहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हो क्या होता है? अपना रिडक्शन रिएक्शन होती है, ओके। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल हो और साथ में हमारा क्या हो रिडक्शन भी पॉसिबल है, उस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं, ओके। सो हमारे पास अभी लास्ट अब 2 टॉपिक और बचते हैं, लास्ट फाइनल। होप आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंप्लीट समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और उसको मैं जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। और हमारे पास नया टॉपिक है कोरोजन, ओके। कोरोजन से दूसरा अगर मैं वर्ड बोलूँ आपको यहाँ पे, रस्टिंग, ओके। और अपने हिंदी में बात करें जंग लगना, ओके। कोरोजन होता क्या है? कोरोजन शिफ्ट का आयरन के साथ ही होता है? तो नहीं, कोरोजन किसी भी टाइप के एलिमेंट के साथ हो सकता है, लेकिन बस एक वन कंडीशन होनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो मॉइस्चर के साथ क्या होना चाहिए? रिएक्ट करना चाहिए, ओके। मॉइस्चर मीन्स जहाँ पे एयर ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी अवेलेबल हो और साथ में हमारे क्या हो? वाटर की क्वांटिटी भी अवेलेबल हो, ओके। तो कोरोजन का डेफिनेशन लिखे हैं, इट इज अ reaction in which the element is get oxidized, okay। जो एलिमेंट क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज हो जाए, उसको मैं क्या बोलूँगा? कोरोजन बोलूँगा। ऑक्सीडाइज का टर्म का मतलब यही है कि सीधा सा मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का उसमें क्या ऐड हो जाए, उस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ क्या हो जाए? ऑक्सीजन का ऐड हो जाए, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा अपना। आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ठीक है, और क्या बना देगा? Fe2O3 कंपाउंड बनेगा। और ये क्या अपना आयरन ऑक्साइड बोल सकते हैं, इसको फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आयरन क्या हुआ? ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ और क्या बना? ऑक्साइड बना लिया।
तो इस पूरे प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगा, कोरोजन। ओके, तो कोरोजन टर्म का मतलब है सीधा से यही कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही होगी, ओके, अगर एलिमेंटल बात कर रहा हूँ मैं, मेटल्स की बात कर रहा हूँ, मेटल्स नॉन मेटल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको क्या बोलूँगा मैं कि ये कोरोजन हो रहा है वहाँ पे। हम देखते हैं बारिश के टाइम पे क्या होता है कि हमारे आयरन्स की रोड्स वगैरह अगर जो रूफ पे लगी होती है, छत वगैरह पे क्या होती है, एक जैसे बारिश होती है, बारिश के सीजन के बाद क्या होती है, वो रस्ट होना शुरू हो जाती है। रस्ट मतलब क्या, बारिश में हुआ क्या, वाटर मिला, ऑक्सीजन एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, तो वाटर और ऑक्सीजन के साथ आयरन ने क्या किया, रिएक्शन किया और क्या बना दिया, इसके ऊपर ब्राउन कलर का रस्ट बना दिया। रस्ट का मतलब ऑक्साइड बना दिया, फेरिक ऑक्साइड बना दिया। ओके, तो किसी मेटल नॉन मेटल के लिए मैं क्या टर्म यूज करूँगा, कोरोजन, जब वो पर्टिकुलर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। लेकिन वाइस वर्सा हम देखते हैं डेली लाइफ में कुछ फूड पैकेजिंग वगैरह होते हैं जिसको कहते हैं कि खुला रह जाता है कभी कभी, तो क्या होता है, खाना खराब हो जाता है, उसका टेस्ट थोड़ा सा बीटर हो जाता है, ओके, बीटरनेस जैसा टेस्ट आता है हमको। तो घर पे मॉम वगैरह भी क्या बोलते हैं कि चीज़ों को खुला मत रखो, खराब हो जाएगी। क्यों होता है ये सारा, ठीक है। तो अगर हम फूड स्टफ की बात करेंगे, ठीक है, तो फूड स्टफ में भी क्या होता है, वो भी टर्म, वो चीज़ होती है वहाँ पे प्रोसेस, वहाँ पे भी ऑक्सीडेशन ही है। पर्टिकुलर वो मान लो कि कोई ऑयल है, ठीक है, पर्टिकुलर जो फूड प्रोडक्ट जो ऑयल से बना हुआ है, वो एक टाइम बाद क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, ऑक्साइड्स बना देता है, ओके, फैटी एसिड्स वगैरह उसका तो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो लेकिन उस टर्म को मैं कोरोजन नहीं बोलूँगा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मम्मी को अपन क्या बोलता है कि खाना खराब हुआ, ऐसा थोड़ा बोलते हैं मम्मी खाने को जंग लग गया है ना, पॉसिबल ऐसे टर्म कभी कोई यूज़ ही नहीं करता। क्या होता है, खराब हो गया, तो खराब जो ऑक्सीडाइज हुआ वो फूड पर्टिकुलर, ओके, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। हम बोलते हो खाना रेंसाइड हो गया, रेंसाइड मतलब खराब हो गया, पर्टिकुलर ऑक्सीडाइज हो गया वो, ओके। हम देखते हैं कि मार्केट से जाके चिप्स ले आए, चिप्स ला के आधी खाई, आधी हम रख के भूल गए। तो क्या हुआ, चिप्स का पैकेट खुल गया, चिप्स के पैकेट में क्या नाइट्रोजन गैस होती है जो क्या करती है, वो ऑक्सीजन से प्रिवेंट करती है। अगर ऑक्सीजन होगा ही नहीं इस पर्टिकुलर फूड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, खराब होने से बचाएगा उसको। लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको टीयर कर दिया, आधा खाया आधा भूल के रख के। तो हम भूल गए, अब हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद हमें ध्यान आया, अरे यार हम तो चिप्स लाए थे वो खाते। तो आप उस चिप्स को खाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक बीटर टेस्ट आएगा, मतलब वो खराब हो गया, आप बोलोगे यार चिप्स तो खराब हुई, मैंने खुली छोड़ दी। तो एक्चुअली खराब होने का कारण है कि वो ऑक्सीडाइज हो गया, वो जो पर्टिकुलर फूड का ऑयल था वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और वो टेस्ट के साथ बीटर दे रहा है, मतलब खराब हो चुका है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें सेम ही हैं, अगर डेफिनेशन की बात करो दोनों डेफिनेशन सेम ही रहेंगी, लेकिन क्या होगा फ़र्क कि पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से बात करेंगे। अगर मेटल नॉन मेटल्स के टर्म्स में बात करूँगा तो मैं उसको कोरोजन बोलूँगा, लेकिन मैं फूड स्टफ्स की बात करूँगा जो पर्टिकुलर जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, ड्रिंक्स और जो फूडिंग वगैरह जो होता है उसके लिए मैं क्या वर्ड यूज़ करूँगा, रेंसिडिटी और रेंसाइड होना, ओके। तो ये हमारा आज फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस फर्स्ट चैप्टर में आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके। मैं जल्दी जल्दी इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस